Good evening, all of you. Hope things are going good and your study is gradually coming on the track, or maybe it already has. I hope it already has. Only one video that I have uploaded for class 11 for the subject for the topic gravitation, in which we are studying about basically variation of gravitational field or variation of acceleration due to gravity. And in under this topic, by one factor, how a gravitational field, how acceleration due to gravity is depend on, have discussed. Or whenever we are moving above to the surface of Earth, the Earth gravitational field, it means acceleration due to gravity. How it changes, that already has been done. That already has been discussed in last video. And based on that variation, we already have done some illustration also. And today we just want to continue from that only, variation of acceleration due to gravity, with that topic. Where is acceleration due to gravity? One thing we already have done in last video, that is when we moving from above to the earth surface. Today we just want to discuss about, if we assuming an imaginary canal, and if we are moving in that canal which are toward the center, how acceleration due to gravity will change. See, suppose this is earth, and this is the center of earth. If we put an object on the surface of the earth, the weight of that object, suppose mass of that object is m, the weight of that object experienced at the surface, that mg, and this must be equal to the mg m into value of g is capital G, mass of earth, by r square. As acceleration due to gravity, what we already have derived, that G is equal to capital G, mass of earth, upon r square, where r is radius of earth and its value is 6400 kilometer. From this equation we can get the value of Gme is equal to gr square. This is very important relation that we required in further. Now just imagine a situation, if this object put somewhere inside the earth by making an imaginary canal toward the center. Let's now this object put here, somewhere here, at d depth from the surface. Now distance from the center would be, see, this is the total distance r, radius of earth, and this must be equal to r minus d, in this way. Now question is that what should be the weight of this object at this point? If we put the object here, question is that what should be weight of this object? Here, how weight is defined? M into G, and the value of Gme by R. So first of all, let's the value of G at this point, maybe G prime, anything. Here G at depth D. If we put the object here, how the weight of this body will be? Weight is what? Weight is the force exerted by the earth surface on a mass, on a body which has mass, that is called its weight. किसी बॉडी का वेट क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं.
जैसे यहाँ पर हमने mg, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सर्टेड बाय द अर्थ है। तो वेट कैन बी रिटन लाइक mg इक्वल टू m इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे हम ये बॉडी लाके रखते हैं तो अब भी क्या वेट उसका उतना ही होगा या कुछ कम या ज्यादा होगा? अगर हम इस बॉडी को यहाँ रखते हैं तो इसका वेट अब भी उतना होगा या कुछ कम होगा या ज्यादा होगा? तो हम कहते हैं कि ये जितना फोर्स इस पर अर्थ एक्सर्ट करेगी उतना ही इसका वेट होगा। अब देखो ये यहाँ पर अर्थ का जो पोर्शन इसको इंटरेक्ट करेगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो ये रेडियस वाला करेगा, इतना। सपोज वी हैव ए मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक दैट in the form of hollow sphere. We have a distributed mass in the form of hollow sphere in this way. And if we put an object here, suppose हमारे पास एक मास, डिस्ट्रीब्यूटेड मास कैसा है, हॉलो स्फीयर के जैसा है। यहाँ पर हम एक दूसरी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है यहाँ रखते हैं, तो देखें इसके ये पोर्शन से फोर्स इधर लगेगा, इसके ये पोर्शन से फोर्स इधर लगेगा, इवन इसके सब ड्यू टू इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के वजह से इस पर फोर्स इस तरह से लगेगा। देयरफॉर नेट फोर्स जो आएगा इस पर एफ नेट वो 0 आएगा। तो हॉलो स्फेरिकल बॉडी की वजह से उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगी, वहां से हम देखेंगे उस पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे और वो हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि जितना इधर रहेगी उतना इधर रहेगी, इसलिए नेट क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो बचा हुआ पोर्शन अर्थ का है, हमने उस अर्थ से ये एक छोटा स्फीयर एज्यूम कर लिया, बाकी का पोर्शन इस पर फोर्स तो लगाएगा लेकिन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो फोर्स लगाएगा वो सिर्फ इतना पोर्शन लगाएगा, मतलब वेट ऑफ दिस बॉडी इज कम इनटू इफेक्ट ड्यू टू दिस पोर्शन ऑफ अर्थ, नॉट द रिमेनिंग पोर्शन। एंड नाउ दिस वेट कैन बी रिटन लाइक दैट m into g, and g must be something different, we call it g subscript d, it means g at depth d, it equal to mass of this body into g mass of this sphere. Let mass of this sphere is m prime upon r square means r minus d square, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कितनी है सेंटर से यहाँ तक, r माइनस डी है, r माइनस डी स्क्वायर इन दिस वे। क्लियर? अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारे लिए होगा कि अगर हम ये मास, इतने पोर्शन का मास निकाल लें और इसमें रख दें तो हमको वहां से g एट डेप्थ मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा इक्वेशन g एट डेप्थ d मस्ट बी इक्वल टू g मास m प्राइम बाई r माइनस डी स्क्वायर। m प्राइम क्या है, r माइनस डी रेडियस वाले स्फीयर या रेडियस वाले अर्थ का मास है, और वो हमको कैलकुलेट करना है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम कहते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है, सिंस मास ऑफ अर्थ एमिंग, वो पूरे में इज इन वॉल्यूम, कितने इज ऑफ वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का है, 4/3 पाई आर क्यूब। एज्यूमिंग दैट मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अर्थ का जो मास है वो कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा एज्यूम करते हुए हम इस पे चलते हैं। तो हम कहेंगे कि यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, जो टोटल मास है, मास ऑफ अर्थ, उसको डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम से 4/3 पाई आर क्यूब से।
अब हम कहेंगे कि इतने स्फीयर का मास निकालना, मतलब इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका रेडियस पता है तो वॉल्यूम लिखा जा सकता है. सो मास ऑफ दिस मच अर्थ वुड बी m अपॉन एम ई, मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें मास डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ या दिस पोर्शन ऑफ अर्थ, एंड इट विल बी 4/3. इसको कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर माइनस डी है. आर माइनस डी का क्यूब. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो सकता है. यहां से जो मास ऑफ दिस पोर्शन ऑफ अर्थ हमको मिलेगा वो मिल जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का क्यूब. ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. इसको सेकंड बना लेते हैं, इसको फर्स्ट. हम कहते हैं कि फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इक्वल टू g अपॉन r माइनस डी स्क्वायर. मास ऑफ दैट पोर्शन ऑफ अर्थ इज मास ऑफ अर्थ me बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का क्यूब. ये एक टर्म यहां से दो टर्म कैंसिल हो जाएगा. हमको मिलेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट g डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी. इस तरह का कुछ. वहां से r कॉमन कर लेंगे तो g एट डेप्थ d इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू r 1 माइनस डी बाई आर अपॉन आर क्यूब. ये एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट g डेप्थ विल कम g m e बाई आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर. From there we can say g equal to g m e by r square, and this is the value of g at the surface या acceleration due to gravity at the surface. r is the radius of earth. वहां से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या? g at depth d must be equal to g at the surface into 1 minus d by r. These two equation we have. Suppose r minus d, we consider it as any radius r. Suppose is this r minus d जो हमने रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म पे लिखा है, हम कह दें कि सेंटर से वो r डिस्टेंस पर है. यानी हम ये एज्यूम करें इफ r इक्वल टू r माइनस डी, मतलब r माइनस डी की जो कुछ भी वैल्यू हुई, d डेप्थ हम गए जितना भी किलोमीटर गए और उसकी जो कुछ भी वैल्यू आ गई उसको हम क्या मान ले रहे हैं? r. सपोज हम r/2 डिस्टेंस नीचे गए तो सेंटर से कितना बचा? r/2, उसको हम क्या मान लिए? r मान लिए. सपोज हम 400 किलोमीटर नीचे गए तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस बची? 6000 किलोमीटर. तो 6000 किलोमीटर को हम क्या कह दे रहे हैं? वो r. एक जनरल केस मान रहे हैं. अगर ऐसा मानते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d मस्ट बी इक्वल टू g m e बाई this one, this from this g m e by r cube into r. In the place of r minus d we can write r. या g at depth d must be equal to g mass of earth by r cube into r. और यहाँ से हमको एक चीज पता चलता है, हमको ये पता चल रहा है कि क्या है? g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m e मास ऑफ अर्थ
r radius of earth everything is constant, this r is variable। मतलब r अगर चेंज होगा, कैसे चेंज हो सकता है, r इधर भी आ सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और r की तरफ भी जा सकता है। अगर r की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी सेंटर पर, यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ r इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर, तो g एट डेप्थ d यानी g एट सेंटर इक्वल टू जीरो। एंड इफ r बिकम इक्वल टू कैपिटल R, मतलब यहाँ सेंटर से चल के हम कहाँ चले आए, यहाँ पर आ गए, तब हमारे पास g एट डेप्थ d इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन r क्यूब इंटू r, और यहाँ से हमको मिल जाएगा GME बाई आर स्क्वायर। तो g की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तैसे तैसे g की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ से, यानी g इनसाइड द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r and above the surface we already have calculated that value of g is decreasing inversely with the r square because this वो हमको क्या मिला था कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि g की वैल्यू r के साथ बढ़ रही है। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन g वर्सेस r where r is the distance from the center। तो अगर हम वो देखना चाहें, वो एक ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, ये सेंटर मान लो, यहाँ तक ये r, ये मान लो 2r, ये मान लो 3r एक्सेट्रा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g इज एट इट्स सेंटर, और वो किसके बराबर होती है, GM बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पर इधर g, और ये मैक्सिमम होती है कितनी, GM बाई आर स्क्वायर के। तो सेंटर से सरफेस तक g की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि g इज प्रोपोर्शनल टू r। कैसे बढ़ती है, जीरो से लेकर GM बाई आर स्क्वायर तक, यहाँ तक। और उसके बाद क्या होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है इस तरह से, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन दो तरह से कैसे g की वैल्यू चेंज होती है, g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक क्या है कि अगर हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी घटती है। हमने देखा सरफेस के अंदर अगर हम जाते हैं एक इमेजिनरी कैनॉल बना के, तब भी क्या होती है, घटती है, और सेंटर पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हम एक इसमें इमेजिनरी कैनॉल बना दें और उसमें ड्रॉप कर दें, तो जैसे ड्रॉप करेंगे यहाँ पर उसका वेट घटते जाएगा, और वेट किधर लगेगा, इधर सरफेस की तरफ बढ़ेगा, और फाइनली वो क्या होगा, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। या ये एक अलग पहलू है कि उसमें जाने पर वो कैसा करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जो हमारा इस टॉपिक का मेन पॉइंट है वो ये है कि चाहे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू घटती है, और सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ जाते हैं तब भी क्या होता है, जी की वैल्यू घटती है। सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो हो जाती है। ये तो हम अर्थ सरफेस पे सेंटर से ऊपर नीचे कहीं भी मूव करते थे वो देख रहे थे। एक दूसरा पहलू ये है कि अगर हम सोचे कि अर्थ थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, उसका रेडियस कम हो जाए, ऑटोमेटिक उसका साइज छोटा हो जाए, और साइज छोटा होने से क्या जी की वैल्यू चेंज होगी, अगर होगी तो किस तरह से होगी, उस पर हम लोग एक इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और ये एक क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाय 2% एंड इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट, how is its acceleration due to gravity changes। ये by what percent of acceleration due to gravity changes, सेंस ये है क्वेश्चन का कि किस परसेंटेज में acceleration due to gravity चेंज होगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेडियस, अर्थ का रेडियस 2% श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए,
तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन से हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं, इसको हम रफ करेंगे। अब देखो एक चीज ये है कि अगर रेडियस श्रिंक होता है, अगर हम g की वैल्यू देखते हैं, सिंस g इक्वल टू व्हाट, g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ही श्रिंक हो रही है और परसेंटेज चेंज हो रहा है उसमें। तो पहली बात तो परसेंटेज चेंज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये कंफर्म कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इफ x बी ए क्वांटिटी, अगर x कोई क्वांटिटी है और वो चेंज हो रही है, देन परसेंटेज चेंज इन x कैन बी एक्सप्रेस, चेंज इन x कैन एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा मैथमेटिक्स में परसेंटेज चेंज को, हम कहेंगे कि चेंज इन x क्या है, डिवाइडेड बाय रियल या इनिशियल वैल्यू ऑफ x इनटू 100। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस परसेंटेज चेंज। ये क्या है, चेंज है, चेंज इन x, और ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है। तो चेंज इन x बाई एक्स इंटू 100, इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमको r का परसेंटेज चेंज दिया है तो हमको इस इक्वेशन का चेंज के फॉर्म में लाना जरूरी है, इस इक्वेशन को अप्रोच करने के लिए। देखो हम कहते हैं कि g की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट कहीं पर फिट नहीं हो रहा है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग। और जब हम लॉग लेंगे तो मिलेगा हमको लॉग g इक्वल टू लॉग ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ये लॉग m बाई n है, तो यहां से हो जाएगा लॉग कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ माइनस लॉग ऑफ r स्क्वायर, क्योंकि होता है लॉग m बाई n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये होता है। थोड़ा सा और ओपन करते हैं उसको और एक्सप्रेस करते हैं, इसको लिखेंगे लॉग g प्लस लॉग मास ऑफ अर्थ माइनस 2 लॉग r। दो इक्वेशन, ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग g की वैल्यू आ गई। एक तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, और log m टू द पावर n होता है n log m। ये फार्मूला मैंने कभी दिखाया होगा आपको, वहां से देख सकते हो। log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, और log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। ठीक, log r टू द पावर 2 इक्वल टू 2 log r, log g इंटू m इक्वल टू log g प्लस log m। ठीक, ये हमको मिल गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि g की वैल्यू चेंज होगी किसके हिसाब से, r की। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इस सेंस में, और जब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो log g की वैल्यू होती है 1/g, और g में जो चेंज होगा वो हम कहते हैं स्मॉल चेंज d इंटू जी या डेल्टा जी इक्वल टू, इसमें चेंज होना नहीं, कांस्टेंट है तो ये 0, या इसका डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 इंटू लॉग r, उसी तरह से 1/r, और r का कितना हो जाएगा, dr। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया या चेंज निकाल लिया। अब इससे हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया dg चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू -2 इंटू चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन इनिशियल रेडियस ऑफ अर्थ r। अब हमें परसेंटेज चेंज के टर्म पर रेडियस ऑफ अर्थ का मिल गया है, जो कि क्वेश्चन में दिया था।
कितना परसेंटेज चेंज था, 2% था, यानी डेल्टा आर बाई आर कितना था, 2% था, और घट रही थी, इसका मतलब -2 करेंगे तो इसका परसेंटेज, ये तो चेंज है, परसेंटेज चेंज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू -2 डी आर बाई आर इंटू 100, और यहां से मिलेगा -2। चेंज इन रेडियस कितना था, 2% का था, घट रही थी इसलिए -2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4% आ जाएगा। मतलब अगर रेडियस 2% श्रिंक हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना परसेंट बढ़ जा रही है, 4% बढ़ जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर है, हाइपोथेटिकल फैक्टर है कि अगर अर्थ का रेडियस ही घट जाए या घटने लगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी अगर उसका मास कांस्टेंट रहे। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने इसको कर लिया, इसको नोट कर लो। तो ये 2 फैक्टर थे, एक तो सरफेस से ऊपर जाने वाले और एक इसमें, और दूसरा अगर वो श्रिंक होती है तब किस तरह से चेंज होता है, यहां से हमने देख लिया। एक फैक्टर और है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करता है, और वो है साइज। एक तो है शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ का शेप जिस तरह से है उससे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। और दूसरा एक फैक्टर है, वो ये है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत, हालांकि बहुत कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी बहुत कम है, बहुत छोटी है, फिर भी वो क्योंकि रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन की वजह से भी अर्थ की ग्रेविटी पर या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर एक इफेक्ट आता है, उसको भी वो चेंज करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमको ये सीखना है, हम ये वाला रफ करेंगे। 2 फैक्टर और हैं। एक तो नेक्स्ट ये 2 फैक्टर थे, दूसरा है शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप के वजह से भी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। अर्थ का जो रियल शेप है वो प्योर स्फीयर ना होकर पोल्स पर क्या है, वो फ्लैटेंड है, पोल्स पर थोड़ा चिपटी है वो, और वो जो उसका शेप है कुछ इस तरह से है, ओवल शेप पर है, प्योर स्फीयर ना होके बल्कि क्या है, वो ओवल शेप में है, पोल्स पर थोड़ा सा क्या है, वो चिपटी हुई है इस तरह से। ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर, ए प्लेन विच इज perpendicular to the axis of rotation of earth is called equator, and the line joining the poles is called axis of rotation। तो ये पोल्स है, यहाँ की रेडियस r@p रो और यहाँ का रेडियस re है, और होता ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। तो हम वहां से g की वैल्यू देखेंगे, हमारे पास g की वैल्यू क्या है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर है। तो अगर रेडियस घटेगा तो g की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस ज्यादा होगा तो g की वैल्यू कम होगी। इसीलिए क्या है, इक्वेटर पर जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर g की वैल्यू कम होती है। क्या है, देयरफॉर g इज स्मॉल या स्मॉलर एट इक्वेटर। इक्वेटर पर g की वैल्यू कम होती है और पोल्स पर ज्यादा होगी, क्योंकि पोल्स पर वो फ्लैटेंड है, रेडियस थोड़ा कम है, इसलिए g की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक फैक्टर ये भी था। एक फैक्टर और है, वो है रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन के वजह से भी, रोटेशनल वो जो मोशन है अर्थ का, उसके वजह से भी क्या होता है, जी की वैल्यू में वेरिएशन है डिफरेंट लोकेशन पर। सपोज ये अर्थ है,
सपोज ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये पोल्स हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही होती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं कि अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। हम कोई एक लोकेशन लेते हैं, मानते हैं कोई एक लोकेशन एल्टीट्यूड थीटा है, यहाँ पर हम हैं कहीं पर और इसकी लोकेशन कितनी है, थीटा है। अगर ये एल्टीट्यूड थीटा है, ये लोकेशन थीटा है, तो जब यहां पर हम रहेंगे तो कैसे रोटेट करेंगे, कुछ इस सर्कल में रोटेट करेंगे, ऐसा। यहां रहेंगे तो इस सर्कल में, इक्वेटर पे रहेंगे तो इक्वेटर वाले प्लेन पर रोटेट करेंगे। उसी तरह से जब यहां पर हैं तो इस एक प्लेन पे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इस प्लेन पे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे। और ये रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, क्योंकि यहां पर है और अर्थ ऐसे घूम रही है अगर, तो इस जिस एल्टीट्यूड पर रहेंगे उस रेडियस के अकॉर्डिंग हम रोटेट कर रहे हैं। अब याद करो, इन सर्कुलर मोशन इफ ए बॉडी परफॉर्मिंग या एक्सिक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, ए फोर्स इट आउटसाइड या अवे फ्रॉम द सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या हम ही अगर एक रस्सी से बांधकर एक पत्थर का टुकड़ा घुमाते हैं तो हमको लगता है कि पत्थर के टुकड़े उधर एक फोर्स लग रहा है। एज वी रिलीज आवर फिंगर्स द स्टोन विल मूव अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द रेडियस। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv² होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं कि mr⍵² भी लिख सकते हैं। ठीक, इधर लगेगा। अगर बॉडी यहां पर है, अगर बॉडी कुछ यहां पर इस सर्कल में मान लो रोटेट कर रही है, बॉडी अगर यहां पर है तो इस बॉडी पर वेट जो लगेगा अलोंग द रेडियस लगेगा mg, अगर इसका मास m है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो इधर आएगा, कौन सा आएगा, mr⍵² cos थीटा, क्योंकि वो थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइन। और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा और ये वाला कंपोनेंट कुछ ऐसे ही होगा, ये होगा mr⍵² sin थीटा। ये दो कंपोनेंट इसके हम रिजॉल्व कर लिए। अब क्योंकि mr⍵² sin थीटा इस वेट के नॉर्मल है तो इसका कोई इंपैक्ट इस वेट पर नहीं पड़ेगा, जबकि mr⍵² cos थीटा अपोजिट टू द वेट है तो इसका इंपैक्ट बॉडी के वेट पर आएगा, इफेक्ट इसका बॉडी के वेट पर आएगा। फिर से इस बात को समझो, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mr⍵², उसका एक कंपोनेंट mr⍵² cos थीटा अलोंग एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेट के हैं, और दूसरा कंपोनेंट mr⍵² sin थीटा वो नॉर्मल टू द वेट है, तो इसका कोई इंपैक्ट इस पर नहीं आएगा, ओनली इसका आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि अगर सिर्फ इसका इंपैक्ट आएगा तो इफेक्टिव वेट की बात हम करते हैं कितना होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है mr⍵² cos थीटा, इधर लग रहा है वेट mg। तो क्योंकि वेट ज्यादा है, बॉडी इस पर ही रहती है, तो यहाँ इसके अलोंग हमको क्या मिलेगा, इफेक्टिव वेट मिलेगा। और उस इफेक्टिव वेट को हम क्या लिख पाएंगे,
एम जी प्राइम मान लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, इतना होगा। एम कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है और हमको मिलेगा जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू आती है, जी माइनस दिस टर्म है। अब इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा जीरो कहां पर होगा, इक्वेटर पर, एट इक्वेटर, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो जी प्राइम इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन की वजह से ये वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, ये मिनिमम हो जाएगा जी प्राइम, ये मतलब क्या, ड्यू टू रोटेशन मिनिमम ये होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब कहां पर पहुंच जाए, पोल पर, ये घूम के कहा आ जाए, पोल पर आ जाए, तब यहां पर जी प्राइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टेड बाय द इट्स रोटेशन इक्वल टू जी माइनस जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जी हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये रोटेशन हो गया। अब क्योंकि आर यहां पर निकाला जाता है, हर एल्टीट्यूड पर आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म पे निकाली जा सकती है। यहीं से देख लो, अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये भी थीटा हो जाएगा तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोट आर बाई एम जी। एम जी वाली लाइन की लेंथ कितनी है, आर है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है, यहां पर रख देंगे और हमें मिलेगा क्या, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन मस्ट बी इक्वल टू जी, दिस इज द रियल वैल्यू एट द सरफेस, माइनस आर की जगह पर इंटू आर की जगह पर क्या रख, माइनस आर की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, आर की जगह पर रख सकते हैं आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और यहां से जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। अभी ये रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म पर आ गया। तो ये दो तीन फैक्टर थे, ये वो सारे फैक्टर थे जिनसे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करती थी, कैसे करती थी, किन फैक्टर पर डिपेंड करती थी, ये इतना था। ये टॉपिक अभी कंप्लीट होता है, यहाँ तक सब लोग नोट्स वगैरह बना लेंगे और यहाँ तक रिवाइज कर जाएंगे। तब तक एंजॉय करें, मस्त रहें। थैंक यू।